Shots have been fired and the first ball hasn't even been bowled. Will India travel to Pakistan for the Asia Cup? Will Pakistan then come to India for the World Cup? Is this all just political posturing, or should we really be concerned about the statements coming out of both countries that started with Jay Shah saying that India will play the Asia Cup at neutral venue and that the Asia Cup will be held at a neutral venue and not Pakistan? Does any of this really have a bearing on Sunday's big one between the two countries at the World Cup? Should we really be talking about this at all? Devendra Pandey and Rahul Pandey, who join us today. I mean, the whole thrill, the whole spotlight has actually shifted from what was supposed to be a really, really good match to all the off-the-field drama that's kind of become the center point of the debate this week. We come to you directly, Devendra Pandey, because, well, we are recording this right now on a Wednesday, but by the time this comes out, you'll be in Melbourne, where all the action will be. क्या लगता है यार आपको, मतलब ये सब जो स्टेटमेंट्स अभी आए हैं लास्ट कपल ऑफ डेज में, इन दिस कंटेक्स्ट हम हमेशा जो एक कहते हैं, राइट, इंडिया पाकिस्तान मैचेस हैव लॉस्ट देयर जिंग, वो एक जो एक कट्टरपन जो दोनों टीम में होता था व्हेनेवर दे यूज्ड टू प्ले ईच अदर, वो थोड़ा सा मिसिंग है. इन दैट कंटेक्स्ट आई थिंक ये स्टेटमेंट्स थोड़े काम आ जाएंगे, थोड़ा सा फायर आ जाएगा. बट यार, व्हाट शुड वी रीड इनटू दिस? थैंक यू मीर, थैंक यू एवरीवन जो भी सुन रहे हैं जहाँ पे भी हैं. हैप्पी दिवाली इन एडवांस. शायद मैं मेलबर्न पहुंचने के बाद दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा, पर फटाके तो फूट चुके हैं. पर आपके पास 5.5 घंटे जल्दी हो जाएंगे दिवाली तो. आई नो पर फटाके तो बहुत फूट चुके हैं. आधे इंडिया में उसकी आग लगाई गई है और इसकी गूंज हर जगह तक सुनाई देगी. आई थिंक द टाइमिंग थोड़ा सा, जय शाह बीन दी ACC के प्रेसिडेंट भी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो ही हैड मेड इट क्लियर कि दैट India won't be traveling to Pakistan, and as per the policy, government will decide कि जाना है कि नहीं जाना है. But before even consulting government, BCCI secretary Jay Shah decided कि बॉस हम नहीं खेल रहे हैं. It will happen in neutral venue. Going to the World Cup थोड़ा तो बuzz होगा, क्योंकि ये थोड़ा स्टेटमेंट ऐसे समय पे आया जब इंडिया पाकिस्तान going to play next Sunday, तो उसमें थोड़ा सा एक रोमांच जरूर होने वाला है. और क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एनीवे प्ले हार्डली है, हम लोग हमेशा नहीं खेलते उनसे. और लेकिन हाँ, जैसे पहले जैसी राइवलरी तो जरा भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें ऐसा है कि अगर आप देखें तो ये जो टीम है, बहुत सारे जितने भी दर्शक हैं उनको रिलेट नहीं कर पाते. अगर वही आप 90s की बात करें या 90s जो हमारी जनरेशन के थे, हम रिलेट कर पाते थे इंडिया पाकिस्तान के बॉलर्स को, प्लेयर्स को. नहीं देवेंद्र भाई, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा. यहाँ पर आपने आपकी एज जरा से दिखा दी है. आई एम प्रीटी श्योर हमारे काफी जो यंग लिसनर्स है वो शायद उतना ही रिलेट कर पाते हैं. यार मैं यंग ही हूँ, मैं 38 हूँ, मैं ज्यादा नहीं हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है. यंग लिसनर्स अपने हो जाते हैं राहुल पांडे जैसे, जो फोटो भी आपने कॉलेज डेज का लगाए, कैटफिश फोटो जिनका जूम कॉल पे मैं दिख रहा. राहुल पांडे, यू स्टिल conspicuous by your silence so far. But coming to you on this, I mean, before the Asia Cup match, right, we were talking about how overly melodramatic everyone was being before the India-Pakistan match, and there was just too much of hugging and whatever was happening on the sidelines of those two matches that were played. This time, it seems totally opposite. So far, there has been no really goodwill gestures from both sides, at least on their social media handles. But, well, like Deven said, fatake futna shuru ho gaye from the official end. How do you view this whole thing in the context of Sunday's match? Thank you so much, Mihir, for mentioning that photo bit. I'm sure our listeners would have wanted that ahead of me speaking anything on the pod. But getting on to it, I think ये जो मैच था ऑलरेडी, इसमें एक नया पेज था इंडिया पाकिस्तान राइवलरी में, बिकॉज ऑफ कोर्स द स्ट्रीक दैट एंडेड लास्ट टाइम अराउंड, इंडिया लॉस्ट देयर फर्स्ट मैच टू पाकिस्तान इन एनी वर्ल्ड कप, वो खत्म होने के बाद में आई थिंक दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ न्यू फेज इन दिस राइवलरी. बिकॉज एक और चीज हुई एशिया कप में, हमने देखा कि पाकिस्तान पहला मैच बहुत क्लोज मार्जिन से आ रहा, इंडिया दूसरा मैच बहुत क्लोज मार्जिन से आ रहा. तो दोनों टीमें इस वक्त अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उनके पास हैं, बट दे आर वेरी क्लोजली कंटेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मेट. अगर हम बात करें, देवेंद्र भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैचेस दोनों टीम के बीच में बहुत कम होते हैं. इस कारण ये जो राइवलरी है, इसको एक नया मोड़ मिल जाता है, ये कहा जा सकता है, बिकॉज द टीम्स डोंट गेट यूज्ड टू फेसिंग ईच अदर दैट मच. जहां तक ऑफिशियल एंड से ये बातें हुई हैं,
आई एम श्योर उसका इफेक्ट प्लेयर्स पे उतना नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि पाकिस्तान और भारत के कुछ प्लेयर्स आपस में बातचीत कर रहे थे। आई थिंक 1 या 2 दिन पुरानी बात है, मोहम्मद शमी अपनी जो बहुत ही जानी मानी उनकी जो सीम पोजीशन है वो पाकिस्तानी गेंदबाजों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से कराई जाती है। तो प्लेयर्स में आई डोंट थिंक उतना यहाँ पर एक स्पाइसी एंगल जुड़ चुका है इस मुकाबले से। बट आई थिंक ओवरऑल नैरेटिव यस, timing does not look good, in fact, because Pakistan also wanted to host the 2022 Asia Cup, which they couldn't. And then when it seemed like they will host the 2023 Asia Cup, एक समय ऐसा लग रहा था कि this might be a reality because it's a tournament rather than a bilateral, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुई है 1 दशक से ज्यादा के समय में। अब ऐसा लग रहा है कि it's gotten to a very better point, and as long as those who are running the sport are taking the calls on this, giving their statements on this, I don't think it's going to improve anytime soon. Yeah, well, I mean, enough of, I guess, this whole official talk for today's episode. I don't know अगर जो हम वापस इस पे आ जाएंगे going further. But then you are on your way to Melbourne as we record this. And वहाँ पर तो I think काफी अच्छा माहौल set हो रहा है. You found it really tough to get hotels around the MCG. We have read reports of how the tickets at this 90-odd thousand seater stadium was sold out within minutes. जब भी India-Pakistan match का venue decide हो गया, then the tickets went on for sale. Crowd में तो of course there is a lot of buzz. But tell us about how you've been kind of gearing up for this यार. क्या-क्या आपको दिक्कतें सहनी पड़ रही है to sleep in Melbourne? आप जवानी के दिनों की बात हो रही थी. You'll be back at a hostel near the MCG, I'm guessing? Yeah, I will be staying in a hostel. थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया लगता है कोविड का सारा पैसा हमसे निकाल रहे हैं, 3-4 गुना लगान ले रहे हैं। आई होप इंडिया विन दिस वर्ल्ड कप क्योंकि बहुत मुश्किल से रूम मिल रहे हैं। जो एक मुझे याद है 2016 में ऑस्ट्रेलिया गया था विच इंडिया टूर्ड फॉर 5 वनडे एंड T20s, तब द रूम विच वी वर पेइंग $300 Australian फॉर 3 nights. Now it's some 900 or 1,000 Australian dollars. So it's that expensive. Wow. I think it's more India Pakistan game तो और ज्यादा है। आपको स्टेडियम के पास रूम नहीं मिल पा रहे हैं। Either you take a tramp and travel some way far away and then come back, which I felt कि चलो we'll stay near the hostel because बहुत दिन हो गया हॉस्टल में रुके भी नहीं है। I hope रैगिंग वुगिंग ना हो वहाँ पे, खाली बस पर जाते ही जेट लैग का भी मुझे डर लग रहा है। 12 hours straight flight. Excited of course इंडिया पाकिस्तान मैच, ऐसे मैचेस बहुत कम देखने मिलते हैं और दोनों एक बहुत ही क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टीम है, रेवेन्यू के हिसाब से भी और व्यूअरशिप के हिसाब से भी बहुत लोग इसे देखते हैं और इट्स दिवाली के आसपास ही है, तो आई एम श्योर कि बहुत लोग ग्लूड रहेंगे ये मैच देखने के लिए। Right. हमने last week we spoke about Rahul and I spoke about how basically T20 and World Cup being an example of it. कैसा this version of cricket has kind of democratized the sport कि कितने सारे countries, new countries are now playing cricket and are a part of at least major events and are in play for its qualification. But like you said, Devanbhai, I think some encounters will remain special and India-Pakistan certainly is one of them. Especially, Rahul, like you mentioned, because last time, although यार मतलब same feeling नहीं आती है जब भी हम बात करते हैं about Pakistan beating India's streak at World Cups, because I still am not really considering T20 World Cup as the World Cup. But still, they won and एक तरह से the streak ended. And this time looks very evenly balanced if the Asia Cup was anything to go by. Absolutely. And that's the thing ना, ये एक I think chain effect होता है जब एक streak, use this term a lot these days, but ऐसी streaks which spread across multiple decades, when they break, it's almost like मतलब एक blank phase सा आ जाता है कि now what? And I think we didn't have time to think that much because दोनों वर्ल्ड कप्स के बीच में गैप बहुत कम रहा है। लास्ट ईयर अक्टूबर में ही इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, वापस T20 वर्ल्ड कप आया है 1 साल के ड्यूरेशन में, बीच में दोनों टीम्स एशिया कप में 2 बार खेल चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा गैप हुआ है जिसके बाद दोनों खेल रहे हैं। तो दैट होल वाइब, दैट होल इमोशन उस 2021 वर्ल्ड कप वाले मुकाबले का, दैट्स स्टिल वेरी मच देयर। वो जो हार का दर्द जिसे कहा जाता है, दैट विल बी देयर अमंग द फैंस। एज फार एज प्लेयर्स आर कंसर्न, हमने एशिया कप में आई थिंक जो कुछ कमियां दोनों टीमों की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, देवेंद्र भाई भी हमारे साथ थे एशिया कप से पहले वाला जो हमने पॉडकास्ट किया था उसमें, एंड वन ऑफ द थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट वाज इंडियाज टॉप ऑर्डर बिफोर दैट टूर्नामेंट एंड पाकिस्तान's मिडिल ऑर्डर. The two teams have very separate issues, but going into this tournament with the pitches still fresh,
अलग ग्राउंड्स पे मुकाबले होंगे, अभी राउंड 1 के मैचेस अलग ग्राउंड्स पे हो रहे हैं और जो सुपर 12 के मुकाबले होंगे वो अलग ग्राउंड्स पे होंगे, तो पिचेस बहुत फ्रेश होंगी। दोनों टीमों का बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान का खास तौर पर, आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से हुआ और जिस तरीके से उनके गेंदबाजों ने शुरुआती दौर में अटैक दिया है अफगानी बैटर्स को, एकदम आई थिंक दे broke the bone of their batting in those initial overs. Shaheen Shah Afridi picked a couple of wickets, which was something India faced in last T20 World Cup. He's looking in good touch. एक टो क्रशर डिलीवरी उन्होंने कराई थी अफगानिस्तान ओपनर रहमुल्लाह गुरबाज को, जिसके ठीक बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया फॉर स्कैन्स. He also got another Afghanistan opener out, and Haris Rauf picked a couple of wickets. Pakistan ki bowling attack this time, I think, is looking really solid, I think, with his comeback. And India, I think that whole emotion, as I said, regarding this fixture, जो खौफ एक था पिछले मैच में, जिस तरीके से पावर प्ले में 3 विकेट्स गिर गए थे भारत के, उसके बाद से it was all down for the team. I think that fear has been restored, especially after today. So yeah, I'm just keeping my fingers crossed for it. Yeah, and I think another reason to keep our fingers crossed is, I mean, we can go deep into analysis हम जितना चाहे उतना, but the fact remains that for Sunday, the weather forecast in Melbourne is around, I think, 80% of rain chances. Devin, if I'm not wrong. इस बार बारिश बोलेगा, मौका ओ थैंकफुली मौका ऐड बंद हुआ है यार, कितना अनोइंग था एक टाइम के बाद, हर चीज I know, right? Thankfully वो पूरी जिंगोइस्टिक एड्स बंद हो गई है, which वो एटलीस्ट मैंने नहीं देखी. आई डोंट नो, आई वॉच अ लॉट लेस टीवी दीज डेज, पर वो एड्स अच्छा हुआ बंद हो गया. बट यार ये जो बारिश वाला मामला है देवेन भाई, इंडियाज वार्म अप मैचेस ऑन वेडनेसडे, आई थिंक वाज इट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो वॉश आउट हो गई थी, एंड देन पाकिस्तान आल्सो कुडंट, आई थिंक, कंप्लीट देयर वार्म अप गेम्स. दो चीजें इसमें देवेन भाई कि एक, ऑफ कोर्स देयर इज अ कंप्लीट चांस ऑफ वॉश आउट. सेकेंड सिनारियो उसमें यह है कि इफ वी गेट सम पार्ट ऑफ अ मैच जो रिड्यूस्ड हो जाता है, इवन इफ वी गेट फुल कोटा ऑफ 20 ओवर्स, कंडीशंस पे कितना इम्पैक्ट करेगा? बिकॉज वी, like we discussed in the earlier podcast, the one that came out last week, Australia में we don't see a lot of cricket in this particular month, in October, November फिर भी थोड़ा सा उनका domestic start हो जाता है, but October is still a couple of weeks too early. If it starts raining, conditions wise, आई थिंक कंडीशन वाइज ग्राउंड तो उनके सारे इक्विप्ड हैं, सब जितने भी मॉडर्न ग्राउंड आ रहे हैं, उनके ड्रेनेज सिस्टम्स आर मच एफिशिएंट. हल्का भी अगर बारिश रुकती है तो मैच होगा, ऐसा नहीं कि मैच नहीं होगा. आपने जैसे कहा कि इट्स वेदर ड्यू एक तो होगा नहीं, पहले बात, क्योंकि ठंड है, क्योंकि अगर थोड़ा और लेट मैच होता तो ड्यू होता तो वो भी कम इन प्ले होता, तो वो एक निकल जाएगा. पिचेस फ्रेश होंगे तो स्लो भी हो सकते हैं, क्योंकि नए ठंड में पिचेस का या तो फिर हल्का सी उसमें मॉइस्चर रही तो तेज गति गेंदबाज को भी फायदा कर सकता है करके. तो मैंने शायद सचिन का बीच में मैंने पढ़ा था कि अगर पिचेस अगर ठंड होने की वजह से स्लो भी हो सकते हैं करके इसको, तो वो एक भारत के लिए इतना इश्यू नहीं होना चाहिए. आई थिंक एशियन टीम्स को किसी को इश्यू नहीं होगा, क्योंकि वी आर यूज्ड टू इट. स्लो विकेट्स पे खेलना, फास्ट हुआ तो दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा जो मसल मेमोरी काम करता है, अगर आप भारत का देखें, नो डाउट बीसीसीआई ने अच्छे से प्लान किया, उनको काफी बैक मैचेस खेले, हम इंडिया में खेल के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एडजस्टमेंट को टाइम लगेगा. बट इतने आजकल के प्रोफेशनल प्लेयर हो गए हैं कि मुझे दिखता नहीं है. बस हाँ, जो वेदर देवता है वो अपना मन बनाए रखें कि दूर रहें उस एटलीस्ट ग्राउंड के घेरे से, ताकि दर्शकों जो इतने खर्चा करके पहुंचेंगे उनको मैच देखने में मिले. काफी खर्चा किया बाय द लुक्स ऑफ व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग. होटल्स सोल्ड आउट है, टिकट्स एक्सपेंसिव है, फ्लाइट्स आई डोंट नो कितने इंडिया से और पाकिस्तान से रिस्पेक्टिवली हैव ट्रैवल्ड, बट आई एम श्योर देयर विल बी क्वाइट अ फ्यू. Now, this disclaimer aside, the weather disclaimer aside, then again, just before I come back to the Junior Pandey, India's bowling lineup, of course, without Bumrah, looks extremely shaky to me, and we've seen that in the last few overs. There has been a lot spoken about. Ravi Shastri especially highlighted ki India ki fielding, the importance of them needing to pick up their fielding. And batting well, Rohit Sharma and Virat Kohli's form का तो हम कितना ही अभी उसे स्ट्रेच करें वो टॉपिक को, पर यार तीनों डिपार्टमेंट्स में टीम काफी कम अश्योर्ड लग रही है कंपेयर टू देयर अर्लियर कैंपेन्स. What expectations should we have, of Sunday's match? आई थिंक बुमराह का नोबडी एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा, इंजरी से आने के बाद और सडनली वापस इंजर्ड हो जाना. इवन एवरीबडी गॉट शॉक कि यार इसको हुआ क्या करे, सडनली सब तो ठीक चल रहा था. पर अगर आप थोड़ा सा देखें, प्लेयर्स की भी गलती नहीं, इतने मैचेस खेल रहे हैं, देयर इज नो रिकवरी टाइम एट ऑल. आपको ये बॉडी को मशीन जैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते. राहुल द्रविड़ फिर भी थोड़ा प्लानिंग करके गए, पिक एंड चूज हुआ है, पर
जाने से पहले इतना बड़ा बॉलर ही उनका अगर चला जाएगा तो एक दिक्कत तो होगी, क्योंकि 4 ओवर आपके सेफ थे। आपको पता है बुमराह का खराब डे भी वो कितना मार खाएंगे। बहुत ही रेयर होगा कि बुमराह 10 के रन रेट के पार ही पड़े हैं, लेकिन उनका होना टीम में बहुत जरूरी था। अब शमी आए हैं, शमी का लास्ट आईपीएल के हिसाब से लोग हम आकलन कर सकते हैं, तो लास्ट आईपीएल उनका काफी अच्छा गया था, तो सबको लग रहा है कि शायद ये अच्छा करेंगे। और जहां तक बैटिंग की और फील्डिंग की बात थी, आपने बहुत सही कहा, रवि शास्त्री ने भी पॉइंट उठाया था कि जैसे अभी जडेजा नहीं है, जडेजा कम से कम एक मैच में 10 से 15 रन रोकते हैं। तो अगर जिस मैच में अगर 200 रन बन रहे हैं और 15 रन अगर रोक दिया जाए तो 180 का टारगेट इज चेसेबल, जैसे आजकल लोग बैटिंग वूटिंग करते हैं। पर वही अगर 15 रन आप नहीं उसको रोक पा रहे हो तो आपको 15 एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे। तो somebody has to take that charge। और अगर आप ये टीम का देखें तो फील्डिंग सब 30+ हैं, किसको कहाँ छुपाएंगे आप? अश्विन है 30+ है, डीके ऋषभ पंत से कोई एक खेलेगा, अब भुवी है, ये सब सर्कल वाले प्लेयर हैं। डीप में किसको आप रखोगे? रोहित डीप में जाएंगे नहीं, विराट एक बचे, राहुल एक बचे, तो काफी कुछ मनूवर इनको करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर कहाँ किसके लिए सुटेबल है। काफी बिहाइंड द थॉट गया है, इंडियन टीम ने काफी मेहनत तो की है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे देवेन भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि स्टार्ट ऑफ द पॉड आपने कहा था कि आप यंग हो और आपकी एज 38 है। मैंने किसी एक्चुअली सपोर्ट स्टाफ को मैसेज भी भेजा, मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ, मेरा पेस कम हो गया, बस स्विंग भूवी जैसे जरूरत पड़े तो आपकी कवर ड्राइव तो एटलीस्ट है विराट कोहली जैसी। कवर ड्राइव विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, चांस ही नहीं, बॉलिंग ठीक ठाक स्विंग डाल सकता हूँ अभी भी थप्पे तो गिर ही जाएगा। Rahul Pandey, of course, Devin mentioned about Ravindra Jadeja and his fielding. I think Virat Kohli comes closest, I guess, to Jadeja and matching that fielding well a bit. But if we were to talk about batting, like one person I'm really excited to see because there's a lot of hype around him is Surya Kumar Yadav. Kafi he's flown under the radar क्योंकि the focus has been कि कोहली and रोहित शर्मा क्यों अच्छा नहीं कर रहे, but जो एक बैट्समैन रियली अच्छा कर रहा है बहुत, दैट्स सूर्य कुमार। हाउ मच विल इंडिया डिपेंड ऑन हिम? अ लॉट, आई थिंक। इवन दो टॉप ऑर्डर की कुछ परफॉर्मेंसेस रही हैं इस टूर्नामेंट में जाते हुए, विराट कोहली की 71st 100 वाज अ बिग साई ऑफ रिलीफ। ही लुक्स टू हैव ओपनड अप अ लॉट सिंस दैट एशिया कप। और केएल राहुल की 1-2 पारियां रही हैं विद स्ट्राइक रेट जो केएल राहुल से एक्सपेक्ट की जाती है। बट एज फार एज द फॉर्म ओवर लॉन्ग टर्म इज कंसर्न, आई मीन दिस इज जस्ट अनदर गाय। 2021 मार्च में इन्होंने डेब्यू किया था सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में, और पहली गेंद से अभी तक वो इम्पैक्ट उनका कम नहीं हुआ है। पहली गेंद जोफ्रा आर्चर के खिलाफ खेली थी और उनका जो ट्रेडिशनल शॉट है लेग साइड में, जो ये हल्का सा झुक के अलग तरीके का पुल शॉट खेलते हैं, वो उन्होंने लगाया था। एंड आई थिंक बहुत लंबा समय था इनको भी, जब भारत की कैप मिली उससे कुछ 2-3 साल पहले से ये बातें शुरू हो गई थी कि सूर्या को कब टीम में मौका मिलेगा। रवि शास्त्री ने बाकायदा खुद ट्वीट किया था आईपीएल के एक मैच के बाद कि आप धैर्य रखें, आप दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, बहुत करीब आ चुके हैं उस इंडिया डेब्यू के। एंड आई थिंक इज जस्टिफाइंग एवरी बिट कि आपने जो इतना समय बाद एक मौका इन्हें दिया है उसको ये बिल्कुल नहीं गंवा रहे हैं। इंग्लैंड गए, वहां रन बनाए, एशिया कप में ये बहुत एक तरीके से कहा जा सकता है वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग बैटर्स के रूप में थे उस पूरे टूर्नामेंट में, इवन दो इंडिया बाउड आउट अर्ली। और ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखें, अब वार्म अप मैच ही कहें चाहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरीके से उस दिन रन बनाए, मतलब आदमी ने इतने रन बना लिए हैं कि वो एक समय पे स्टंप माइक पे कॉट हो गए हैं बोलते हुए कि यार मन ही नहीं कर रहा मार। दैट्स जेन्युइन वीडियो ऑफ हिम, एंड उसके ठीक बाद वो आउट भी हो जाते हैं। तो आई थिंक इज जस्ट स्कोरिंग रन्स एट विल। So yeah, I mean ऐसे बैटर पे आप डेफिनेटली डिपेंड करोगे। एंड कम्स एट अ पोजीशन जहां पे सब जने उतनी गति से रन नहीं बनाते। मिडिल ओवर्स के बारे में अगर हम बात करें, T20 में पावर प्ले को ग्लोरीफाई किया जाता है, डेथ ओवर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, पर मिडिल ओवर्स में हर टीम की रन रेट थोड़ी सी गिरती है। अभी हमारी बात जॉन ब्यूकैनन से हुई थी इंडियन एक्सप्रेस पे, आप जो हमारे लिसनर्स है वो इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि व्हाट ही हैज नोटिस्ड इज दैट मिडिल ओवर्स में जो नंबर ऑफ डॉट बॉल्स है किसी भी टीम की वो इंक्रीज हो जाती है। The most he bats is during that phase. उस फेज में अगर आपके पास ऐसा बैटर है जो 180 यहाँ तक कि 200 की स्ट्राइक रेट पे भी रन बना सकता है, तो आई थिंक इज अ जेम। Well, let's see how much this gem shines in the next couple of weeks. Quick closing thoughts, yeah, before we get in our producer on with his thoughts on India, Pakistan, and everything that's going around. But Pandey and Pandey, where will this match be won and lost? कौन से decisive areas होंगे आप दोनों के हिसाब से? Senior Pandey goes first. I think bowling, that will be the key.
बैटिंग तो वी स्टिल हैव, अगर हार्दिक पांड्या चल गए तो बॉलिंग दोनों टीम्स की या इंडिया स्पेसिफिक? इंडिया स्पेसिफिक, क्योंकि हमारा बॉलिंग इतना ग्रेट नहीं है जैसा होना चाहिए। आपको बुमराह नहीं है तो फर्क तो पड़ेगा ही। अर्शदीप भी नए हैं, बड़े मैच रहेगा, आई होप वो अच्छा करें, पर वो देखने लायक रहेगा कैसा उस दौरान डालेंगे करके। आई थिंक बॉलिंग विल बी द की, दैट विल डिसाइड कि हमारा वर्ल्ड कप कैसा जाएगा। क्योंकि अगर बॉलर्स ने डिलीवर कर दिया है तो वी हैव अ बैट्समैन, अनलेस यू हैड अ वेरी ड्रास्टिक बैड डे इन ऑफिस जिसमें सबका नहीं चलता हो, नहीं तो अदरवाइज बैटिंग वी हैव हार्दिक उदिक चल गया ऑन अ गिवन डे। क्योंकि 6-7 में ऐसे मुझे कोई टीम याद नहीं जिनके पास ऐसे प्लेयर्स हों। आप नीचे देखें, 4 सूर्या है, 5 पे अगर हम पंत मान के चलें, या 6 पे हार्दिक है, फिर डीके को भी अगर लेके चलें तो वी हैव इनफ डेप्थ, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। बट बॉलिंग स्टिल अ कंसर्न फॉर मी। एंड राहुल? I think just to add a bit more flavor into the thought processes of the two Pandays, I'll say कि मैं अभी भी 2021 वाला जो मैच है वो भूल नहीं पाया हूँ. I think where that match was decided was in the first 6 overs. इंडिया ने पावर प्ले में जो विकेट गवाया उसके बाद वो they didn't really come back into the innings the way they would have challenged a Pakistan batting order. तो मुझे लगता है अगर पहले 5-6 ओवर में इंडियाज बैटिंग ऑर्डर गेट्स थ्रू हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, अगर वो फेज हमारा टॉप ऑर्डर निकाल लेता है एट द सेम टाइम स्कोरिंग सम 50 odd runs, I think we have the advantage then. Well, for all these things to happen, we'll have to first hope कि rain stays away from Melbourne. And well, we'll see what happens there. But Shashank Bhargav, bringing you in at this point, any of this interests you? The match, the politics, should India go to Pakistan? Should Pakistan come to India? What's your take on all these things that are happening in the sidelights? So, politics में तो मैं definitely interested हूँ. Clearly, I thought. Yeah. So, जैसे मतलब जय शाह ने डिसीजन लिया और बोला कि इंडिया पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा और पाकिस्तान इंडिया आके नहीं खेलेगा, हमें एक न्यूट्रल ग्राउंड ढूंढना होगा. और इस महीने उनके पापा भी जब कश्मीर गए थे तो उन्होंने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, उनके बीच में कोई सॉर्ट ऑफ पीस टॉक्स नहीं होंगे. तो इससे मुझे बेसिकली मेहुना की याद आई. आपको याद होगा कि 2004 में एक मूवी आई थी मेहुना. Wow, I'm really keen where this is going वैसे पर. So उसमें आपको याद होगा कि शाहरुख खान लीड में थे और उस मूवी में जो विलन का रोल कर रहे थे वो थे सुनील शेट्टी. और वो मूवी में विलन इसलिए थे, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो थोड़ा मतलब लोग वो हॉस्टेज ले लेते हैं और ये सब कर लेते हैं, मगर उनकी कोर आइडियोलॉजी जो थी वो इस बेसिस पे थी कि इंडिया और पाकिस्तान में पीस टॉक्स नहीं होने चाहिए. He was absolutely against it. And in fact, he thought कि India was in a state of war with Pakistan since 1947. वो डायलॉग भी ये मूवी में है जब वो ये बोलते हैं. And I was thinking कि तब से लेकर अब तक 2004 से लेकर अब तक कितना कुछ बेसिकली बदल चुका है कि 2004 में हम ऐसी मूवीज बना रहे थे जहां पर विलन्स बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान पीस टॉक्स के अगेंस्ट थे. और अब तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसे बॉलीवुड में विलन्स डिपिक्ट होंगे और ऐसी बातें भी होंगी. और एंड ऑफ कोर्स अब जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके व्यूज तब से लेके अब तक कितने बदल गए और कितना कुछ चेंज हो गया. तो मैं बस मेहुना को याद कर रहा था. Just like to add this, शशांक ने फराह खान का जो एज अ डायरेक्टर स्टॉक अभी रेस किया है इस एक बात से. I don't think मतलब उनको उतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिला होगा इस लास्ट डेकेड में फॉर अ डायरेक्टोरियल करियर. Well, जो भी कहो मूवी अच्छी थी मेहुना, but I get Shashank's point here. I mean, like Deven said, I think perhaps the BCCI jumped the gun. I don't know if it could have been addressed in a different way. Let's see what happens on this front आगे चल के. For now, the focus will be on what happens in the match between these two sides on Sunday. It is scheduled to begin at 1:30 p.m. India time. Again, hoping there'll be no rain. And if there's no rain, if we have a full quota, half quota, whatever of the match, I think we'll be back with a short episode tomorrow just to talk about everything that goes out in the middle
Thanks for listening to today's episode, and thank you, Devendra Pandey and Rahul Pandey and Shashank Bhargav for being on this Zoom call today. Diwali week next, but well, crackers, like Devendra Pandey said, have already started bursting. Thank you for listening to Game Time. See you all next week. You were listening to Express Sports by the Indian Express. This week's show was edited and mixed by Suresh Pawar and produced by me, Shashank Bhargav. If you like the show, then do subscribe to us wherever you get your podcasts. You can also recommend the show to someone you think will like it. Share it with a friend or someone in your family. It's the best way for people to get to know about us. You can also tweet us at Express Podcasts and write to us at podcasts@indianexpress.com.